I hope all of you can see my screen. Okay, in this chapter, World Climate, we studied first of all the difference between weather and the climate. Okay, the weather and the climate, that is what we studied. Okay, just to do a little recap, the weather was a day-to-day condition and the climate was a weather condition in an area over a long period of time. And after that, we've studied that there is hot climate and cold climate, and near the North Pole and the South Pole it's cold climate, and the place which is near to the equator, I mean close to the equator, is hot throughout the year. And now that we've studied the effects of the climate, that the way we live, the clothes we wear, food we eat, way we spend our leisure time, and the crops grow. Okay, all these things depend on the climate. The clothes we wear depend on the climate. As I told you before, that if there is cold, we wear warm clothes, right? And it also affects the habits of our eating, right? If we live in cold weather, okay, in cold climate, then we eat very hot foods, right? Okay, now move, and it depends on the leisure time as well. It depends on our sports as well. If we live in cold climate, then our sports would be different. We cannot go out for swimming, right, in cold climate. But if we live in warm climate, hot climate, we can do the sports of swimming. Okay. Now, the climatic zones of the world. These in this map, we've learned that there are different zones of the climate. There are places, there are zones where there is very hot and where there is very cold. Okay. Now, afterward, we moved to the climate of Pakistan, the climate of our country, right? We've learned in this chapter that the climate here in our country is in some places it's very hot and in some places it's very cold. Okay. Then afterward, we studied the greenhouse effect, about the greenhouse, the gases, right? I told you before that the gases, the greenhouse gases are the gases which take the heat from the atmosphere of the sunlight and make the climate warm. Okay, some of the sunlight is captured as heat on Earth and some of it goes back towards space. This trapping of heat inside the atmosphere is called the greenhouse effect. Now, the changing in the amount of greenhouse gases actually in the atmosphere can lead to a warming or cooling of the climate system. Okay, now the burning of fossil fuels. We've studied in this chapter that by burning petroleum and coal and natural gases, it produces carbon dioxide. And due to the rapid industrial development all around the world, more vehicles are being added to the roads and more industries are being set up. As a result, the amount of carbon dioxide in the air is increasing day by day. And afterward, the last topic we've learned in this chapter was deforestation, right? Another reason was the increase of carbon dioxide was because of the deforestation. What was deforestation? I told you before, right? That the cutting down of trees is deforestation. And because the trees are the source of oxygen for the world, for the place, right? So they're not going to provide us any oxygen, okay? And they're not going to absorb the carbon dioxide. Okay, so this process is called deforestation. Trees act as the lungs of the earth. They take in carbon dioxide and release oxygen in the air. This way the air gets purified. Okay, since there are less trees now, carbon dioxide is getting added to the atmosphere and not being replaced with oxygen. Okay, and the last, the ways to reduce the efforts of climate change. I told you how we can reduce the effects of climate change. I told you by saving water, by being energy efficient, means saving electricity, turning off electrical appliances, plant more trees, moving, uh, using the bicycles or walking rather than using the vehicles which requires petroleum actually, right?
So drying clothes under the sun, recycling paper, washing clothes in cold water, and make sure rubbish is properly disposed, right? These are the ways by which we can reduce the climate change, by which we can reduce the effects of climate change. Okay, now moving to the question answers. In what ways does the climate affect our lives? First of all, okay, listen to me now. Listen to me, every student now. Make sure you take the screenshots of this, or you can again listen to this video because it's going to be uploaded on the YouTube. Listen to these videos and make sure you do these questions in your neat copies. Okay, I'm only going to explain these answers. Okay, in what ways the climate affect our lives? Answer: climate affects how we live. First of all, the question: in what ways does the climate affect our lives? किस तरीके से क्लाइमेट जो है हमारी जिंदगी पे या हमारी जिंदगियों पे, हमारे लाइव्स के ऊपर इफेक्ट करता है? क्लाइमेट अफेक्ट्स हाउ वी लिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइमेट हमारे अफेक्ट करता है लाइफ के ऊपर, हमारे रहने के तरीके के ऊपर, हम किस तरीके से रहते हैं। द काइंड ऑफ हाउसेस वी लिव इन, हम जिस तरह के हाउसेस के अंदर रहते हैं वो भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज इन इन सम प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी कोल्ड, जो घर बनाए जाते हैं उनकी जो रूफ होती है यानी कि जो छत होती है वो स्लोप की तरह होती है। ठीक है, स्लोप की तरह क्यों होती है? ताकि जब स्नो गिरे, ठीक है, तो वो स्लाइड करके सारी नीचे गिरती जाए। बिकॉज इन समर यहाँ पे हमारे जिस तरह के घर हैं, क्योंकि हमारे इधर स्नो नहीं होती लाहौर में, तो यहाँ पे फ्लैट होती हैं रूफ्स, क्योंकि यहाँ पे स्नो इट डजंट फॉल ऑन द रूफ। लेकिन कोल्ड प्लेसेस पे हाउसेस जो हैं वो स्लोप, इसलिए स्लोप में बनाए जाते हैं उनकी रूफ, ताकि स्लाइड करके स्नो जो है वो नीचे गिरती जाए और इकट्ठी ना हो जाए। क्योंकि अगर सरफेस फ्लैट होगी रूफ की तो वो सारी स्नो क्या होगी, छत के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर, डिपेंड करता है हमारे कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं, अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। ओके, आर एक्टिविटीज एंड वर्क, जिस तरह का हम काम करते हैं, जिस तरह की हम एक्टिविटीज मीन्स के जिस तरह के हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड द वे वी स्पेंड आवर टाइम इनडोर्स एंड आउटडोर्स। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Look at the map on page number 9 and note the lines of latitude which divide the world into climatic regions. Page number 9 के ऊपर जो मैप है, that's on page number 9, उसके ऊपर note the lines of the latitude, latitude की lines note करें, which divide the world into climatic regions, जो divide कर देता है हमारे वर्ल्ड को climatic regions में. The Arctic Circle, the Tropic of Cancer, the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn are the lines of latitude that divide the world into different climatic zones. ये जो आर्टिक सर्कल्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंटार्क्टिक सर्कल है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड की लाइंस हैं जो कि डिवाइड कर देती हैं वर्ल्ड को इन टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, जो कि वर्ल्ड को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर देता है। जिस तरह एक क्लाइमेटिक जोन कोल्ड होता है एंड द अदर वन इज हॉट। Okay, moving to the next question, it's question number 3. What are some of the factors that influence climate? कौन से इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को मुतासिर करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं? द टेम्परेचर, सबसे पहले जगह का टेम्परेचर जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स कि अफेक्ट करता है हमारे जगह को। द टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि कितनी तादाद में, मीन्स कि कितनी अमाउंट में रेनफॉल हो रही है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कितने हैं एटमॉस्फेयर में। द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स, कि हवाएं जो चल रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है और वो कितनी फ्रीक्वेंसी से, मीन्स कितनी स्पीड के साथ चल रही हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, और हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, यानी कि मुतासिर करते हैं हमारे क्लाइमेट को। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज है क्या? ओके, क्लाइमेट चेंज इज अ फिनोमेनन that occurs when there is a change in the climatic patterns of a region or on a global scale. Climate change एक ऐसा फिनोमेना है जो कि तब पैदा होता है when there is a change in the climatic patterns, जब क्लाइमेट के पैटर्न्स के अंदर चेंज आता है।
और फिर उससे क्या होता है कि पूरे रीजन का या पूरा ग्लोब का, ठीक है, क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। फ्रॉम द मिड टू लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मिड 20th सेंचुरी से लेके या उसके बाद later on, the increased levels of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperatures of earth. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यों ज्यादा होती जा रही है? क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा होती जा रही हैं, डिफोरेस्टेशन होती जा रही है, इट्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, कार्स, ट्रक्स, इंडस्ट्रीज, मिल्स, और हर जगह पे पेट्रोलियम यूज हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा, दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा, डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती जा रही है, दैट इज द रीजन व्हाई इट्स बिकमिंग मोर हॉट एंड हॉट डे बाय डे। दिन ब दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो अर्थ का है वो ज्यादा होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इट्स क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज? क्या ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने से, ट्रीज प्लांट करने से, किस तरह अगर प्लांट करें हम, ठीक है, तो वो किस तरीके से रिड्यूस करेगा क्लाइमेट चेंज में, या क्या इफेक्ट लाएगा? अगर हम ट्रीज ज्यादा लगाना शुरू कर देंगे, ग्रीनरी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, आंसर, ट्रीज एक्ट एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीज जो हैं वो ऐसे ही एक्ट करते हैं जिस तरह के अर्थ के लंग्स हैं, ठीक है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं अंदर, विच इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि मेन वजह है क्लाइमेट चेंज की। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी जनरेट हो रही है फैक्ट्रीज से या गाड़ी चलाने से, बर्निंग, बिकॉज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में हमारे एनवायरनमेंट में पैदा हो रही है, उसको लेट दे टेक इन दैट कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो इनहेल करते हैं, जब वो अंदर ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है, विच इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, और उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर के अंदर, और ऑक्सीजन जितनी होती है उतना क्लाइमेट अच्छा होता है। दिस वे द एयर गेट्स प्योरिफाइड, इस तरीके से जो एयर है, जो हवा है, जो आबो हवा है हमारे इधर, हमारे दुनिया की या हमारी कंट्री की या किसी भी प्लेस की, वो प्योरीफाई होती जाती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते जाते हैं, ठीक है। दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? आंसर, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस एग्जिस्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, एंड अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू इट एंड रीच द अर्थ सरफेस। और क्या करते हैं, सनलाइट को अलाउ करते हैं कि इन गैसेस के थ्रू पास होके अर्थ के ऊपर आए, thereby regulating the earth's temperature। इस वजह से, क्योंकि ये सनलाइट को अलाउ करती हैं दरमियान से पास होने से, इस वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट जो है वो, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है, वो चेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? अब ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स क्या हैं? The greenhouse gases in the Earth's atmosphere trap heat to keep our Earth warm। ये क्या करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज? ये सनलाइट में जो कि एटमोसफेयर के अंदर होती है उसमें से हीट को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको वार्म कर देती हैं। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमोसफेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ट्रैप करना हीट का, ग्रीन हाउस गैसेस का हीट को ट्रैप करना inside the atmosphere is called greenhouse effect. Okay, question number 8. What kind of human activities are responsible for climate change? Human activities, हमारी जो काम है या हमारी जो एक्टिविटीज हैं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के? द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आंसर, नंबर 1, सबसे पहली बात क्या है कि क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोलियम फिल करते हैं, ठीक है, अपना टैंक हम रिफिल्स करवाते हैं, ठीक है, फिल करते हैं रोजाना, पेट्रोलियम डलवाते हैं अपनी बाइक्स के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। हम फॉरेस्ट जो हैं उनको क्या करते जा रहे हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, तबाह करते जा रहे हैं, ठीक है, किस वजह से?
एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, ताकि वहाँ पे हम चीज़ों को ग्रो कर सकें, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इन जनरल, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, केमिकल्स, मेटल्स एक्सेट्रा, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर सीमेंट बन रहा है, केमिकल्स बन रहे हैं, मेटल्स बन रहे हैं डिफरेंट किस्म के, और सब इंडस्ट्रीज के अंदर क्या यूज हो रहा है, पेट्रोलियम यूज हो रहा है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। और पेट्रोलियम जब जलता है, व्हेन इट बर्न्स, आपको पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एंड फॉर आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज? आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन होते हुए हम क्या कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए? ओके, जिस तरह मैंने बताया, देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमने पढ़ा यहाँ पे बहुत से ज़्यादा तरीके हैं जो हम करें तो उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी तरह से इसका आंसर आप सुनिएगा। Many activities can be undertaken to reduce climate change. For example, using less electricity. Number one, electricity कम use करें, saving water, पानी को सेव करें, planting more trees, ज़्यादा से ज़्यादा trees जो हैं वो plant करें, walking or bicycling instead of using a car. ठीक है, कार यूज करने की बजाय हम बाइसिकल यूज कर सकते हैं, या अगर थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जाना है वी कैन गो बाय वॉक, हम वॉक करके भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गो टू अ यूटिलिटी स्टोर, राइट, टू और अ ग्रोसरी स्टोर, अगर आप कुछ दुकान पे लेने जा रहे हैं और दुकान आपके करीब ही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप कार पे जाएं, ठीक है, आप वॉक करते भी जा सकते हैं या बाइसिकल यूज करके भी जा सकते हैं। रिसाइकलिंग मटेरियल, बाइंग लेस प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो भी एक रीज़न है, इस वजह से प्लास्टिक जो है वो कम से कम हम बाय करें, एक्सेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू। ओके,